Je distingue mon qui le stage, mes frères, mes enfants, mes maman, mes sœurs, tout le monde qui est présent. Au nom de Sunirasvi Society, moi qui ai tout, je dis trop chamdid et je dis Jashne Eid Mubarak, Jashne Eid Milad Nabi Mubarak. Nous allons commencer nos programmes maintenant et comme d'habitude, nous commençons nos programmes avec tilawat quelques versets Coran Sharif. On appelle Imam Masjid Shani Rasoul, Hazrat Maulana Haq Nawaz Sikandari pour faire tilawat Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم.
Subhanallah, je finis écoute Tilavat Quran, nous faisons doigt qui nous récit tous les jours lien de Quran Sharif, montrer nos enfants lire Quran Sharif et donner l'habitude pour dans la case tous les jours lien de Quran Sharif, ce barkat extraordinaire. Je demande que les oulémas me se rappellent. Aujourd'hui, nous nous rassemblons ici dans Sunni Razvi Garden. Une fait faire une apposition extraordinaire, qui est dans la position trouvée. Nous remercions Allah qui lui donne Sunni Razvi Society l'occasion, il donne Sunni Razvi Tawfiq pour nous organiser Jasne de Milad Nabi, le SAS qui est là, le SA niveau là. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour faire sa célébration de sécurité. Et nous aussi pas oublier qui nous précède moi, avant moi, et qui le micro là. Je me rappelle là, fait que là, il y a 3 semaines, des gens qui disent non, maman, tu es dans la place là. Il y a un cas, je connais que ça me peut dire, Abdul Khalik Jawata. Il y a 3 semaines, 21-22 jours. Et qu'il est intégral, Allah nous l'a comme ça, nous fait droit, qui pendant 25 ans, 30 ans, il fait ce travail-là, ce travail qu'il peut faire aujourd'hui là, pendant 25-30 ans, nous demandons qui Allah fait ce marché, accepter tout ce khidmat qu'il fait pour Din et donner une bonne place. Parce que c'est tout seul, il y a beaucoup de les autres du monde. Je ne vais pas vous prendre, parce qu'il y en a trop beaucoup. Nous avons tous aujourd'hui qui ont tout une partie. Sa célébration que nous faisons aujourd'hui là. Même si je ne suis pas là, moi aussi je trouve quelque part, peut-être nous, et je peux compter ce que nous pouvons faire. Alors, sans plus tarder, je m'appelle Abdul Rahman Pahalak, moi je connais, nous entrons qui dans la société. Alhamdulillah, depuis petit petit, il y en a, et il y a une fierté pour nous dans son Society, que nous avons un entrant de ce niveau-là. Donc, je m'appelle Abdul Rahman Pahalak, pour réciter un Naat Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayka ya Rasul. वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बज़ में मिलाद नबी है हर मुसलमान शाद है बज़ में मिलाद नबी है हर मुसलमान शाद है आमिना नबी है हर मुसलमान शाद है आँख में रोज़ा ज़ुबान पे नाम दिल में याद है आँख में रोज़ा ज़ुबान पे नाम
नबी है, हर मुसलमान शाद है। कुल जहां दुश्मन भी हो जाए तो खुश तर गम नहीं। कुल जहां दुश्मन भी हो जाए तो खुश तर गम नहीं। काली कमली वाले आका, काली कमली वाले आका के अगर इमदाद है, बज़ में मिलाद नबी है, हर मुसलमान शाद है। आमिना के लाल प्यारे मुस्तफा की याद है, बज़ में मिलाद नबी है, हर मुसलमान शाद है। Also een naad sharif qui finit écrire par Hazrat Maulana Khushtar rahmatullah alayh. Et dans sa naad là, c'est Maulana Khushtar peut dire Zoji Miladoun Nabi et tout musulman shad, content, erré. Qui fait un pas pour errer, qui fait un musulman pas pour errer. Quand Zoji nous peut commémorer 1499e l'anniversaire de naissance Hazrat Muhammad Mustafa, pena l'autre qui Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le ça quelques mots là, mon point vite. Hazrat Mufti Sarfaraz Naimi Sahab, qui imam et khatib de Sunni Razvi Aulia Masjid, il peut adresser ce message et pour nous continuer. मोहतरम अज़ीज़म सामिऊन व सामियात, अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, we always commence by praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending blessing and salutation about Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, all his family members and all his companion as well. अज़ीज़ान मुहतरम, दुनिया के अंदर all over the world around billion Muslim बड़े अमन व सुकून के साथ रहते हैं, और मुसलमान किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, उसकी ख्वाहिश और आरज़ू और तमन्ना सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि उसके ज़रिए
उसके इर्द गिर्द एक पीसफुल इन्वायरमेंट पैदा हो हमेशा। क्यों? क्योंकि वी आर द उम्मती ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वी बिलीव इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। हमेशा हम पीस, अमन और सुकून में बिलीव करते हैं और यकीन रखते हैं। अब दुनिया के अंदर अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर अंगुश्त नुमाई करे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला आवर हो, तो वो सिर्फ़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि पीस ऑफ द सोसाइटी जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। जो दुनिया का अमन और सुकून है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम is not only the messenger of the Muslim, he is messenger of the mankind and all creature। सबके रसूल हैं। अल्लाह फरमाता है, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि महबूब आप फरमा दीजिए मैंने सारी कायनात का तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है। दूसरी जगह फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत। तो जिस तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ द मुस्लिम हैं, इसी तरीके से मैसेंजर ऑफ द मैनकाइंड एंड ऑल क्रिएचर्स। इसी तरीके से मर्सी टू मुस्लिम हैं, इसी तरीके से मर्सी टू मैनकाइंड एंड ऑल क्रिएचर्स हैं। सबके लिए रहमत है। अब आपको दो एग्जाम्पल दूँ मैं, एक तारीख़ के हवाले से, एक हदीस पाक के। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के अंदर तकरीबन 13 ईयर्स आपको परसिक्यूट किया गया, तरह तरह से जुल्म किए गए। मक्का में ताइफ से लेकर और मक्का की गलियों तक में पत्थर बरसाए गए, तरह तरह से जुल्म और सितम किया गया। आपको मजबूर किया गया, फोर्स किया गया कि आप अपनी होमलैंड यानी मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ दें। फिर क्या हुआ, सहाबा को लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की, मदीने तैयबा पहुँचे और मदीना जाने के बाद 1000 and 1000 मुस्लिम्स आपको फॉलो करने लगे। अब आप ज़रा बताइए, आज दुनिया के अंदर अमन और सुकून का ढिंडोरा पीटने वाले, अमन और सुकून का ढिंडोरा पीटने वाले, एथिकल वैल्यूज़, सेकुलर वैल्यूज़ का ढिंडोरा पीटने वाले, सिर्फ दिखावे के लिए। अब ज़रा आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि किसी लीडर को अगर किसी मुल्क के अंदर सताया जाए, जुल्म किया जाए और वो वहाँ से हिजरत कर कर दूसरे मुल्क पहुँच जाए और उसके 1000 and 1000 फॉलोवर्स पैदा हो जाएं, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले अपने 1000 and 1000 फॉलोवर्स जो हैं उनसे कहेगा, उनको बताएगा कि मुझ पर किस तरह से जुल्म किया गया, किस तरह से मुझको सताया गया। और जब इतने फॉलोवर्स हो जाएंगे तो फ़ौरन वो रिवेंज के ताल्लुक से सोचेगा कि अब जो मुझको सताया गया है 13 ईयर्स, अब मैं उसका रिवेंज लूँगा। लेकिन आइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बढ़कर अमन और सुकून की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने फॉलोवर्स को लेकर जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं और जाने के बाद जब मक्का में दाखिल हुए तो कुफ़ार और मुशरिकीन अहले मक्का परेशान थे, आज मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन हुजूर जब मक्का में दाखिल हुए तो चेहरे पर ना परेशानी है, ना खौफ है, ना रिवेंज है, ना रिएक्शन है, बल्कि चेहरे से नूर की किरणें जाहिर हो रही है। मक्का में पहुंचते हैं और जाने के बाद, अच्छा एक चीज़ और, अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त अबू सुफियान हजरत नहीं बने थे। तो अबू सुफियान जो लीडर ऑफ मक्का थे, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्का में जो लोग अगेंस्ट थे उनकी लीडरशिप किया करते थे, अबू सुफियान
अबू सुफियान भी मौजूद हैं। लेकिन जब हुजूर मक्का में दाखिल हुए तो अब अबू सुफियान सोच रहे हैं मालूम नहीं आज क्या हो। आज जितना मैंने जुल्म किया है मक्का के अंदर हुजूर पर, हो सकता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज 1000 and 1000 फॉलोवर्स को लेकर आए हैं और ये वो लोग हैं जो हुजूर के एक इशारे पर अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। तो आज मालूम नहीं क्या हो। मगर आका जब मक्का में दाखिल हुए और अबू सुफियान सहमे हुए खड़े हैं तो जुमला हुजूर के लबे मुबारक से जो निकलता है, फरमाते हैं मन दखला दारा अबू सुफियाना फहुवा आमिनुन। ए अबू सुफियान तू ये सोच रहा है मालूम नहीं आज मेरे साथ क्या हो, मगर ये अल्लाह का महबूब ये कहता है कि मक्का वालों जो भी अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, वो महफूज है, वो महफूज है। तो इससे बढ़कर पीस और इससे बढ़कर एथिकल वैल्यूज आप दिखा नहीं सकते दुनिया के कोने पर। अब देखिए आप एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, सारे जहान के लिए रहमत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज के लिए रहमत बनाया। एक और हदीस पाक सुनिए। अंसार का एक ऊंट था, वो ऊंट उसके जरिए वो अपनी फार्मिंग किया करते थे। अब वो ऊंट बीमार हो गया, साइकेट्रिक पेशेंट हो गया। अब वो लोग परेशान, पूरे घर वाले। ऊंट बीमार, पागल हो गया है, काटता है, खाता है, लेकिन काम नहीं करता है। अंसार परेशान है, वो अंसार का जो खानदान था परेशान था। सब इकट्ठा हुए। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन जानता है? सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। हम किताबों में पढ़कर हुजूर की शान का मुताला करते हैं, लेकिन सहाबा वो हैं जिन्होंने बनफ्से नफीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार किया है। तो सहाबा किराम सबसे ज्यादा जानने वाले। अब अंसार का वो जो खानदान था वो सहाबा थे, सहाबी रसूल थे, पूरा खानदान। अब होना क्या चाहिए, जब ऊंट बीमार है और पागल हो गया है, काट रहा है, तो किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे भाई आप दुनिया के अंदर जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी आलिम, किसी पीर से मोहब्बत करते हैं और आपका कोई कुत्ता है वो पागल हो जाए, तो आप उसके पास जाएंगे, बल्कि डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके पास नहीं है, उसका तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर यहाँ अंसार, उनका परसेप्शन और उनका कॉन्सेप्शन देखिए, और इसी से अकीदा बनता है। अंसार का खानदान अपने उस ऊंट के जब शिकायत लेकर पहुंचता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं कहते कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकलते हैं सहाबा किराम के साथ, और निकलने के बाद उन अंसारी के घर पर पहुंच जाते हैं। जब उनके सेहन में दाखिल हुए तो ऊंट एक जानिब खड़ा हुआ था, एक जानिब ऊंट खड़ा था। हुजूर जब उसकी तरफ जाने लगे तो उन्होंने, अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु क़द सारा मिस्लल कल्ब। या रसूल अल्लाह उसके पास मत जाइए, ये जिस तरीके से कुत्ता काटता है इस तरीके से काट रहा है, ये पागल हो गया है। हुजूर कहते हैं नहीं, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। हुजूर उसके पास जाते हैं, उस ऊंट के पास जाते हैं, और जाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊंट के पास पहुंचे और जाकर हुजूर ने उस ऊंट के सर पर अपने हाथ को रखा, और हाथ को रखने के बाद अंसार से कहा कि अब मेरे पास आ जाओ, इसका जो मालिक है मेरे पास आ जाओ। जब वो करीब आए तो उनसे कहा कि अब ये तुम्हारा काम करेगा, वो परेशान नहीं करेगा। ऊंट हुजूर के पास आया और आने के बाद दो जानू होकर बैठा और अपने सर को हुजूर के कदमों में रख दिया। पागल ऊंट है, पागल। हुजूर ये बता रहे हैं कि अगरचे पागल हो गया है मगर अल्लाह के महबूब को आज भी पहचानता है, अगरचे पागल हो गया। अब आज अपने आप को अक्लमंद कहने वाले, इंसान होकर अक्लमंद कहने वाले और अक्ल रखने वाले, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
आज तक नहीं पहचान पाए और आज तक उनको पहचान नहीं हुई, तो फिर इसमें किसी की क्या खता है? एक पागल ऊंट होकर हुजूर को पहचान रहा है और जानता है आज तक कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को ऑल क्रिएचर्स एंड मैनकाइंड्स, हर एक के लिए रहमत बनाकर भेजा, हर एक के लिए। सिर्फ मुसलमानों के ही रसूल नहीं हैं, बल्कि दुनिया के अंदर जितनी मखलूक़ात है अल्लाह ने सबके रसूल बनाकर भेजा। कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए महबूब आप फरमा दीजिए आप सबके रसूल हैं, सबके रसूल हैं, सबके लिए मर्सी टू ऑल क्रिएचर्स, सबके लिए रहमत है। अब कोई सोशल मीडिया पर बैठकर अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ताल्लुक़ से या दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से लोगों को मिसगाइड करे और प्रोपेगेंडा करे दीन इस्लाम या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ख़िलाफ़, तो उसने हुजूर की ज़ात को आज तक पहचाना नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को अगर पहचानना है तो हुजूर की लाइफ को पढ़ना पड़ेगा, हुजूर की जो ज़िंदगी है उसको पढ़ना पड़ेगा। जिसने हुजूर की लाइफ का मुताला किया तो उसने यही कहा कि जब से दुनिया की पैदाइश हुई आज तक और आज से लेकर क़यामत तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई दुनिया में आया ही नहीं है, कोई नहीं आया है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। तो मेरा मैसेज आप तक पहुंचाने का ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्सी टू ऑल क्रिएचर्स हैं, दुनिया के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं सबके लिए रहमत और सबके रसूल हैं। और जो अमन और सुकून और पीस जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ का हमें सबक दिया, आज तक दुनिया के अंदर कोई आप लीडर ऐसा नहीं दिखा सकते जो इस चीज़ का सबक देकर गया हो अपनी उम्मत को। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है और ये ज़ात है। तो आज का मेरा मैसेज आप तक पहुँचाने का मतलब और मकसद सिर्फ यही था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कोई लीडर पीसफुल और अमन और सुकून वाला आज तक नहीं आया। दीन इस्लाम जैसा अमन और सुकून वाला मजहब आज तक इस दुनिया पे नहीं आया। इसका मुताला करें तो लोगों को मालूम होगा। हमें ज़रूरत है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा की ज़िंदगी को लोगों तक पहुँचाएँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक किरदार को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को मालूम हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हम इस महफिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला आपके आने को, मौला तबारक व तआला इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आइए आपका जायका टेस्ट चेंज करते हुए, और आपने एक छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज सुना। अब इसके बाद बुलबुले बागे मदीना जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हमारे ख़ास मेहमान हज़रत कारी मोहसिन साहिब किबला, वर्ल्ड फेमस नात ख़ां कारी मोहसिन साहिब किबला। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना दोनों ही बड़ी अहमियत के हामिल हैं, दोनों ही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हस्सान बिन साबित को मिंबर रसूल पर खड़ा करते थे नात पढ़ने के लिए, और हुजूर बैठकर उस नात को सुना करते थे। अब आप मर्तबा देखिए अपना भी और नात पढ़ने वाले का भी। तो हस्सान बिन साबित नात पढ़ रहे हैं, हुजूर बैठकर सुन रहे हैं। अब जो नात पढ़ रहा है मिंबर रसूल पर,
वो हज़रत हस्सान बिन साबित की सुन्नत को अदा कर रहा है, और जो बैठकर सुन रहे हैं वो हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तो आपकी शान भी कम नहीं है। तो अब मैं बिना ताख़ीर हज़रत अल्लामा क़ारी मोहसिन साहिब क़िबला उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि वो माइक पर आएँ और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर सारी महफ़िल को तसव्वुर में मदीना पहुँचा दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन किराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मॉरिशस में इतना बड़ा इज्तिमा मैंने तो नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल इस तरह इतना बड़ा मजमा हुजूर के आशिकों का जमा होता है हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल में। मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ सुन्नी रज़वी सोसाइटी को, उसके तमाम अहदेदारान अरकान को। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह जश्न नबी और ये जश्न विरादत की खुशियाँ मनाने के लिए इतनी खूबसूरत और पुरवकार महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक इस महफ़िल का सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखिए मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया, लेकिन सबकी आवाज़ नहीं है ना, थोड़ी कम। दोबारा सलाम करने पर भी कुछ जवाब आए, कुछ नहीं आए। पूरे मजमे से कोई एक जवाब दे दे, सलाम का जवाब हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबकी प्यारी प्यारी आवाज़ मेरे कान में आ जाए ना, तो मुझे सुकून पड़ जाए कि हाँ वाकई सारे हमतन गोश हैं, सारे सुन रहे हैं, ठीक है ना। सारे मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। कोई एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा, हुजूर की बारगाह में मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ेंगे। और जब दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते थोड़ा आस पास में देख लेना, आजू बाजू देख लेना कि कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ रहा। अगर नहीं पढ़ रहा तो उसको ऐसा इशारा करना कि पढ़ना है, ठीक है। कोई एक भी खामोश ना रहे, मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि कया सबकी आवाज़ नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आदत है बड़े बड़े मजमे में पढ़ने की, मुझे पता है कि सारे पढ़ेंगे तो क्या आवाज़ होगी। अब जो पढ़ लेना ऐसे थोड़ा सा हाथ बुलंद करे और पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजियों शहंशाह का राजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम कया कोशिश करता हूं कि सारे कलाम जितने भी हैं इंशाल्लाह आमद के हवाले से, ठीक है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, सारे मिलकर जोर से। हाँ सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर
से मुबारक हो, मुबारक हो शगे घर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका कुल्लिहिम। कहीं मासूम नन्ही बच्चियाँ थी दफ बजाती थी, रसूले पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियाँ नज्जार के आली घराने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। मुसलमानों के बच्चे बच्चियाँ मसरूर थे सारे, गली कूचे खुदा की हमद से मामूर थे सारे। नबूवत की सवारी जिस तरफ से हो के जाती थी, दुरूदो नात के नगमात की आवाज आती थी। मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मदा मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व तक़लैन। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व तक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह सुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे युम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हम। अर्ज की जिब्रील ने शाहे दिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा, सारे मिलकर ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल न मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
खेते हरे भरे हैं, करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेते हरे भरे हैं। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गले गले है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गले गले है। ये कौन बनकर करार आया, ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बाहर आया, ये कौन जाने बाहर आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज कम हो गई आप लोगों की वजह, जैसे पहले थे ना आवाज सुभान अल्लाह की, वैसे थोड़ी कम हो गई। सारे मिलकर कहें जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी को अपना खुदा ना मानो, नबी को अपना खुदा ना मानो, मगर खुदा से जुदा न जानो, मगर खुदा से जुदा न जानो। है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गले गले है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाइशें बहुत सारी हैं और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। मेरे पास 5 मिनट बचे हैं और 5 मिनट में मुझे तकरीबन 4 फरमाइशें पूरी करनी है। तो बीच में लाइट चली गई थी, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। और मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए आया कि सारे साथ पढ़ लेते, माइक बनता था, सारे साथ दे रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आइए मिलकर कलाम पेश करते हैं। कहते हैं कि किसी आशिक के सामने, दुनियावी किसी आशिक के सामने उसके महबूब का नाम लिया जाए, सिर्फ नाम लिया जाए, तो वो जो आशिक होता है ना, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं।
लेकिन अगर उसके आशिक, उसके महबूब की तारीफ हो रही हो ना, तो वो आशिक अंदर ही अंदर झूम रहा होता है, मचल रहा होता है, तड़प रहा होता है। मुझे आपकी तड़प देखनी है, मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। हम सब मोहब्बत करते हैं किससे? हुजूर से। हुजूर की ज़ात से मोहब्बत करते हैं। वो ख़ास ज़ात है जिससे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सारी माँ बाप औलाद बहन भाई सबसे बढ़कर है, अपनी जानों से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, है ना। अब मैं उनका जिक्र करने लगा हूँ, उनकी तारीफ़ करने लगा हूँ। मुझे आपकी तड़प देखनी है, और तड़प दिल में नहीं रहनी चाहिए, सुभान अल्लाह की सूरत में आवाज़ से निकलनी चाहिए। शायर ने कहा, ना ऐसी जुल्फे, सुभान अल्लाह, ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी पर शबाब होगा। ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, सुभान अल्लाह, ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पर शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। महबूब बड़े आए, दिलदार बड़े देखे, महबूब बड़े आए, दिलदार बड़े देखे। जितने भी बड़े देखे, कदमों में पड़े देखे, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। बोलो ना, कोई नहीं। खत में रसूल, खत में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा कौन है? खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। खत में रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने कितना मजा आ रहा है। आ रहे क्या नहीं आ रहा? आ रहे तो कहो सुभान अल्लाह। जब सुभान अल्लाह कहने में इतना मजा आ रहा है, तुम सारे मिलकर नात पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। एक शेर पढ़ते हैं इसका आखिरी, और एक दफा मैं पढ़ूंगा, फिर आपने समझ जाना है ये पढ़ना है, और फिर सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और पूरी महफिल में गूंज पड़ जाएगी। पता चलेगा हुजूर के आशिक बैठकर हुजूर के जब नात पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं। हाँ, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी का, ये शान तुम्हारी आका। तुम अर्श से आगे पहुँचे हो, तुम अर्श से आगे पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब, लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत में रसूल, सुभान अल्लाह, दो शेर और आज़िम मुकम्मल। सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा, नूर का सुबह तैबा में हुए पटता है बाड़ा। नूर का सदका ले, नूर का आया है तारा। नूर का सदका लेने, नूर का आया है तारा। नूर का
अल्लाह 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 बारहवीं के चाँद का मुझे राह सजदा नूर का बारह बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का सदका नूर का अल्लाह 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 चाँद से बचपन में आका खेलते थे इसलिए चाँद से बचपन में आका खेलते थे इसलिए ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का अल्लाह 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 तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाह 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 ऐ रज़ा मेरे रज़ा अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा ऐ रज़ा जे अहमद नूरी का फैज़ नूर है ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े ही अच्छे अंदाज में आपके सामने हज़रत क़ारी मोहसिन साहिब क़िबला नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब बिना ताख़ीर आपके सामने हमारे ख़ास मेहमान इंडिया से तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़लुर रहमान अफ़ज़ल क़ादरी साहिब क़िबला, फाउंडर ऑफ सदरुल्लाह फ़ाज़िल इंस्टीट्यूट, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर आएँ और अपने बेहतरीन ख़िताब से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। एक बार बुलंद आवाज़ से हज़रत की आमद पर नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। ज़ीनत बज़्म हज़रात उलमाए ज़विल एहतराम, हाज़रीन सामीन, ख़वातीन मिल्लत, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मतिहिन नबिय्यिल मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बज़्म मीलाद जब सजाई है, बज़्म मीलाद जब सजाई है, रब की रहमत मचल के आई है। कुछ लोग जुबान शेर भी समझते हैं, अंदाजा हो रहा है। कुछ लोग सिर्फ आवाज पर नाचते हैं, मगर सही लोग वो हैं जो शेरों को समझते हैं। चंदी लोग दाद दे रहे हैं, चंदी लोग समझते हैं। शेरों के जरिए से शायर एक अजीम पैगाम देते हुए आगे बढ़ता है, एक तवील व अरीज मजमून को मुख्तसर से अल्फाज में पिरो देता है कि बज़्म मीलाद जब सजाई है, रब की रहमत मचल के आई है, रब की रहमत मचल के आई है। अर्श वाले भी झूम झूम गए और फिरदौस मुस्कुराई है, और फिरदौस मुस्कुरा। उनके मस्ताने मस्त होने लगे, कारी साहब के हवाले से शेर है। उनके मस्ताने मस्त होने लगे, नाते सरकार जब सुनाई है, नाते सरकार जब सुनाई है। अर्श से कुदसियो चले आओ, अर्श से कुदसियो चले आओ, हमने बज़्म नबी सजाई है, हमने बज़्म नबी सजाई है। नाते सरवर लिखी है अफजल ने, जिंदगी भर की ये कमाई है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। वो अगर गधा बना देता तो कुछ कर सकते थे आप? उसकी मर्जी, हम कुछ स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। हम कुत्ता क्यों बनाया, गधा क्यों बनाया? इंसान बनाया, ये अलग बात है कि हम इंसान बन के रहना नहीं चाहते। जुमले पे गौर कर रहे हैं मौलाना हारून साहब, तवज्जो। अल्लाह ने बनाया इंसान, मगर हम इंसान बनकर रहना नहीं चाहते। कुत्ते की आदत हमारे अंदर, मुर्गे की आदत हमारे अंदर, खिंजीर की आदत हमारे अंदर। कुत्ता एक दूसरे को मोहल्ले में देख नहीं सकता, इंसान भी एक दूसरे को तरक्की होते हुए देख नहीं सकता। समझे आपने? इंसान बनाया था जिसमें मोहब्बत होना चाहिए, इंसान बनाया जिसमें उन्स होना चाहिए था, इंसान बनाया जिसमें आपस में इत्तिहाद होना चाहिए था, इंसान बनाया जिसमें हमदर्दी होना चाहिए थी, इंसान बनाया जिसमें इशार होना चाहिए था, इंसान बनाया जिसमें गमखारी होना चाहिए थी, इंसान बनाया जिसमें गमगुसारी होना चाहिए थी। आज इंसान इंसान का दुश्मन है, आज इंसान इंसान का दुश्मन है, क्योंकि इंसानियत का खात्मा हो चुका है। खुदा ने इंसान बनाया था और हम इंसान बन के रहना पसंद नहीं करते, लेकिन जो इंसानियत की अहमियत जानते हैं वो इंसान बन के रहने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ो, इंसान बनाया, उसका करम
और दूसरा करम यह है कि मुसलमान बनाया। जो जो राजी है वो सुभान अल्लाह कहे। दूसरा यह है कि मुसलमान बनाया। हाँ, हम उसके आगे झुकते हैं जिसने सबको बनाया। हम उसके आगे झुकते हैं जिसने सबको बनाया। अपने हाथ से बनाई हुई चीज आगे क्या झुकेंगे? जिसको खुदा ने बनाया उसके आगे भी नहीं झुकते। जिसने सबको बनाया उसको मानते हैं। दूसरा क्या है? मुसलमान बनाया, है ना। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती भी मुसलमान ही था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उम्मती भी मुसलमान ही था। एक बात क्लियर कर दूं, आज इस्लाम के खिलाफ बड़ी मुनज़्ज़म साजिशें दुनिया में की जा रही हैं। इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रोपेगेंडा ये भी है कि इस्लाम 1500 साल पुराना है। हमारा मजहब तो बरसों बरस, हजारों लाखों बरस पुराना है। हरगिज नहीं। ये इस्लाम सिर्फ हमारा ही नहीं, हजरत आदम का दीन भी इस्लाम ही था, हजरत नूह का दीन भी इस्लाम ही था। दुनिया में सबसे पुराना और सबसे पहला मजहब अगर कोई है, कोई दीन है, तो वो दीन इस्लाम है। जो अकायद हजरत आदम ने दिए वही अकायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिए। जो अकायद नूह अलैहिस्सलाम ने दिए वही अकायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिए। जो अकायद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिए, जो जो अकायद अंबिया ने दिए, अकायद नहीं बदले, मसाइल बदले। मसाइल बदले, आमाल का तरीका बदला, लेकिन अकायद वही है जो हजरत आदम के दिए हुए अकायद थे। इस्लाम दुनिया का सबसे पहला मजहब है। हमारे हुजूर, आज कुछ लोग गलती भी करते हैं, हमारे मुकर्रिर बानी इस्लाम, बानी इस्लाम कहते हैं हुजूर को। गलत। असल में बगैर डिग्री वाले बहुत फिर रहे हैं। हाँ, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा जो होता ना, कहते हैं आधा पका हुआ खाना पेट में दर्द करता है और आधा पड़ा हुआ मौलाना दिल में दर्द करता है। और ऐसे बहुत हैं ऐसे। तो ये दीन जो है इस्लाम, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके खिलाफ। नहीं, यही दीन हर नबी का रहा है। मसाइल बदले हैं, अकायद नहीं बदले। समझे? तो हमें मुसलमान बनाया। और तीसरा करम यह है कि मुस्तफ़ा महबूब खुदा सैयदुल अंबिया रसूलों के ताजदार का उम्मती बनाया। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं बना देता, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं पैदा कर देता, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं पैदा कर देता। हम तवज्जो ने इशारा कर दिया, मुझे टाइम हो जाएगा। हम वो हैं, हमारा वो ओहदा है कि जिस ओहदे को हासिल करने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ मशहूर है कि जब उनको रुतबा मालूम हुआ हमारा उम्मत मुस्तफा का, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मुझे उस रसूल का उम्मती बना दे। और दुआ कबूल भी हुई, उम्मती बन के आएंगे भी। अंबिया जानते हैं हमारे रुतबे को, हम नहीं पहचानते अपने रुतबे को। ऐसे प्यारे रसूल के उम्मती और शराब खाने में जाएं, ऐसे प्यारे हबीब के उम्मती कजीनों को सजाएं। वो रसूल दुनिया से बुराइयां मिटाने के लिए आया है। मुसलमान चोर का नाम नहीं, पुलिस का नाम है। मुसलमान मुजरिम का नाम नहीं, मुस्लिह का नाम है। मुसलमान दुनिया में जुर्म करने नहीं आया, जुर्म मिटाने आया है। दुनिया में मुसलमान इस्लाह करने आया है। मुसलमान और झूठ बोले, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मुसलमान और गीबत करे, अल गीबत अशद्दु मिन अज़-ज़िना। मुसलमान इन बुराइयों से दूर रहता है। ए मुसलमान, तेरा रुतबा वो है जो नबियों ने हासिल करने की दुआएं की। अपने रुतबे को पहचान, अपने मकाम को जान। तमाम नबियों के सरदार की
उम्मत में पैदा फरमाया। वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, वो नबी जो गमगुसारे उम्मत बनकर आया, वो नबी जो मोहसिन इंसानियत बनकर के आया। मेरे रसूल सिर्फ मुसलमानों ही के हक में रहमत नहीं, सिर्फ मुसलमानों ही के लिए करम नहीं, मेरे रसूल का करम सारी दुनिया पे हुआ है। हकीकत तारीख से पूछो, तासुब में और दुश्मनी में, तासुब और दुश्मनी की ऐनक लगा के मत देखो। मेरे रसूल के आने से पहले औरतें ऐसे बिकती थी बाजारों में जैसे भैंस और बकरी बिकती है। एक एक घर में 20-20, 30-30, 40-40 औरतें जानवरों की तरह रहती थी। इस गुलामी और कनीज के रिवाज को खत्म किसने किया? सारी इंसानियत पे करम जिसने फरमाया। इस औरत की कोई इज्जत नहीं थी, शौहर के मरने के बाद जीने का हक भी नहीं था। बाज जगह बिल्कुल जंगल में छोड़ दिया करते थे, बाज इलाकों में, बाज मुल्कों में शौहर के साथ ही जिंदा जला दिया करते थे। औरत का कोई मकाम नहीं, कोई हैसियत नहीं थी। मेरे रसूल ने दुनिया को इस्लाम के जरिए बताया। ये औरत जब बेटी होती है तो रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। ये औरत जब बहन होती है तो हमराज होती है, दोस्त होती है, और जब बीवी होती है तो दिल का सुकून होती है, तस्कीन कल्ब होती है, और जब माँ होती है तो रहमत और जन्नत होती है। जिस घर में अल्लाह लड़की अता फरमाता है उससे अल्लाह बड़ा बहुत ही मोहब्बत फरमाता है। ये मकाम किसने दिया? इंसानियत का पैगाम किसने दिया? सारी दुनिया से जुल्म और सितम किसने खत्म किया? लोग कहते हैं सूरह तौबा की आयत का हवाला देकर के इस्लाम जो है अपने ना मानने वालों को, गैर मुसलमानों को मारने का, कत्ल करने का हुक्म देता है। वो आयतें जो किसी वक्त से और जरूरत के वक्त में थी उनको आज पेश करते हैं। कुरान पढ़ करके देखो, मोहब्बत के साथ पता चलेगा। कुरान कहता है वमन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्दि फकन्नमा कतल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान कहता है किसी इंसान ने अगर किसी दूसरे नफ्स को मार दिया तो एक नफ्स को नहीं मारा, एक जान को नहीं मारा, पूरे जहान को मारा। और किसी ने किसी एक जान को बचा लिया, उसने पूरे जहान को बचा लिया। सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, रास्ते से कंकर हटा देना भी इबादत है, पत्थर हटा देना भी इबादत है, कांटा हटा देना भी इबादत है। भाई कौन से रास्ते से? जिसमें सिर्फ मुसलमान चलता हो। हर रास्ते से, चाहे मुसलमान चले या गैर मुसलमान चले। रहमतुल लिल आलमीन, गम गुसारे उम्मत, मोहसिन इंसानियत का पैगाम यह है कि हर उस चीज को दुनिया से दूर कर दो जिससे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ हो, चाहे वो मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो। तेरा पड़ोसी, बड़ा हक है तेरे पड़ोसी का। लिल जार हक, पड़ोसी का बहुत हक है। हज़रत जिब्रील सलाम लाते रहे पड़ोसी के हुकूक। आका फरमाते हैं मैं तो समझा कि शायद जायदाद में भी विरासत बना करार दे दी जाएगी, शायद मैं मकान में भी हिस्सा दे दिया जाएगा, इतना हक पड़ोसी का। अब मैंने सवाल किया, एक सहाबी ने भी सवाल किया और क्लियर कर दिया। सहाबाए किराम पर कुर्बान जाओ, उन्होंने सवालात कर करके हमारे लिए बड़ी आसानियां पैदा कर दी। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह पड़ोसी मुसलमानों जब भी हक है या गैर मुसलमान है जब भी हक है? अब अगर मौलाना साहब का पड़ोसी पंडित हो, पादरी हो, प्रीस्ट हो, उसका हक है कि नहीं है? इस्लाम ने कहा हक है। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ये मत देखो कि दाढ़ी वाला है या चोटी वाला है, ये मत देखो तारे वाला है या वो क्रॉस वाला है, ये मत देखो कौन से मजहब का है। तुम्हारा पड़ोसी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, खुद खा रहे हो तो उसको भी खिलाओ।
अगर वो भूखा सो गया और तुमने पेट भर के खा लिया तो तुमने अपने पेट में खाना नहीं, दोज़ख के अंगारे पहुंचाए। फिर पूछा सरकार अगर वो मुसलमान हो तो का मुसलमान का अलग हक, डबल हक, पड़ोसी का हक अलग है, मुसलमान का हक अलग है, डबल। अगर रिश्तेदार भी हो तो का 3 हक। फिर उस पड़ोसी के कितने हक हैं? 3 हक। रिश्तेदारी का हक भी है, लेकिन कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई मजहब वाला भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, पड़ोसी है। अगर इस पर अमल कर लो, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का पड़ोसी, कह दो सुभान अल्लाह। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का पड़ोसी, एक शहर दूसरे शहर का पड़ोसी, एक मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी, समझे? एक खित्ता दूसरे खित्ते का पड़ोसी, एशिया अफ्रीका का पड़ोसी, अफ्रीका एशिया का पड़ोसी, अरब अजम का पड़ोसी और अजम अरब का पड़ोसी। तो सारी दुनिया में नफरत कहाँ, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, क्योंकि सब पड़ोसी ही होंगे। इस्लाम दुनिया में अमन व आश्ती और मोहब्बत का सबक देने आया है। अरे जिसका सलाम ही पीस पर मुश्तमिल है, कहीं पर होगा जे, कहीं पर होगा गुड, कहीं पर होगा बैड, कहीं पर होगा कुछ। हमारे यहाँ अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो, तुम सलामत रहो, सलामत रहो, अमन से रहो, पीस में रहो एक दूसरा, और वालेकुम सलाम, तुम भी सलामत रहो। जिसका सलाम ही सलामती का पैगाम दे रहा है। मैं ये मजाक नहीं है, हकीकत है। मैं मॉरिशस के बाज लोगों के सलाम से बड़ा परेशान हूं। हाँ, बात आखिरी होगी करनी होना चाहिए था सलाम वालेकुम, सीधा क्या होता है सलाम वालेकुम। इसका माना क्या माना, मर जाओ तुम। वो दुआ नहीं दे रहा, सलाम तो ये अस्सलाम वालेकुम, सलाम दियो तुम पर, हमने सलाम वालेकुम। हाँ याद रखो, जोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। याद कर लो, अस्सलाम वालेकुम मत बोलना, अस्सलाम। सुभान अल्लाह। बड़े ही अच्छे अंदाज में आप हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहिब किबला का ख़िताब समात कर रहे थे। हज़रत ने एक आयत पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर हर चीज़ के लिए रहमत हैं, इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज़ जानती थी। रास्तों से गुज़रते थे तो दरख्त, पत्थर सब हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ा करते थे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर के जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है। तो आइए अब बिना ताख़ीर आपके मुल्क मॉरिशस के एक बेहतरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हारून साहिब किबला मिसबाही, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर आएँ और अपने बेहतरीन ख़िताब से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। एक बार बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर लगा दिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानन्नासु उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन।
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम। Respectés tuban ulama ikram, frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala milliers de milliers de fois qui par sadaqa Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam encore une fois fin accorde-nous mois Rabiul Awwal Sharif et alhamdulillah thumma alhamdulillah. Aujourd'hui 12 Rabiul Awwal Sharif peut donner le destin, peut donner hidayat, peut donner tawfiq pour célébrer Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous te demandons qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait qaboul nos présences, fait qaboul nos bonnes célébrations Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et par barakat sa bonne célébration là augmente nos iman jusqu'à nos derniers jours, garde nous le iman et je lève nous depuis la dunya, lève nous le iman. Un parmi les raisons qui Allah tabaraka wa ta'ala fin envoyé ban prophète de la dunya, nous peut cause en général tout ban prophète. Un parmi les raisons pour avoir Allah tabaraka wa ta'ala pejano kana nasu ummatan wahida, tout insan chancel, tout un seul jamaat, tout une seule communauté, tout une seule famille. فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. Allah tabaraka wa ta'ala fin envoyé ban prophète comme missionnaire, comme avertisseur, qui fait wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, pour que ban divergence qui na, ban différence qui na, ban désordre qui na, ban division qui na, Allah tabaraka wa ta'ala par sa ban livre là li ramène l'unité dans l'insan. Moi dis bien ça, c'est un parmi les missions de tout ban prophète, c'est amène l'unité parmi les gens, amène l'unité dans la société. Les temps limités nous viennent directement avec mission Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dernier prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Allah sur Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam quand fin fait hijrat depuis Makkatul Mukarrama final immigré à Madinatul Munawwara veut dire fin quitte Makka pour immigrer à Madinatul Munawwara. Dans Madinatul Munawwara, des plus grandes tribus, Aus avec Khazraj, qui tous les deux qui finissent accepter l'islam. Avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte Makkah al-Madinatul Munawwara, dans Madinatul Munawwara, sa grande des tribus qui tiennent Aus avec Khazraj. Tous les deux qui déjà fini calmement, tous les deux qui déjà fini vin musulman. Mais seulement, je suis toujours reste couteau à tirer. Je toujours tiens dans l'âne en jeu. Je toujours tiens dans l'enmité en jeu. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand fin vient dans Madinatul Munawwara premier il fait ça deux tribus là vin en et quand ça deux tribus là fin vin en finalement l'unité finalement la corité entre ça deux tribus là Allah tabaraka wa ta'ala fait référence avec ça événement là dans le Coran l'idjano rappelez Allah tabaraka wa ta'ala son ni'mat lozut. Rappelez Allah tabaraka wa ta'ala son faveur lozut. Rappelez cadeau qu'Allah tabaraka wa ta'ala fin donne à travers sa prophète là. Quand je peux vivre avec l'ennemité, chacun qui a soif dit sans autre camarade. Chaque tribu qui va montrer les plus forts et chaque tribu qui va détruire l'autre tribu. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finalement l'amitié, finalement la corité, finalement fraternité. Allah Rabbul Alamin qui qualité fraternité finalement fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana. Ça deux grandes tribus Aus avec Khazraj là fin min comment dire deux propres frères. Deux grandes tribus qui tuent l'ennemi. Qui tient couteau tiré. Mais seulement quand Nabi Karim sallam finalement la corité en jot, finalement comment dire des propres frères. Fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana. Ça c'est finalement la corité entre musulmans. Deux tribus musulmanes. Entre deux tribus musulmanes qui finissent amènent l'unité. Nous en un petit peu plus devant. Allah sur Rasul sallam quand fin rentre dans Madinatul Munawwara. Ne pas oublier dans Madinatul Munawwara depuis avant qui déjà une communauté qui appelle juif. Qui déjà une communauté qui appelle chrétien. Qui déjà une communauté qui appelle sabi. Pour toute communauté vivre ensemble, pour vivre en la paix, pour vivre en fraternité, pour vivre avec l'harmonie, pour une l'entente en toute une communauté. Allah sur Rasul sallam dans Madinatul Munawwara fin propose un traité qui ça traité là dans l'histoire fin appelé comme Misaqul Madina qui nous dit Misaqe Madina. Misaqe Madina, c'est un traité qui se fait dans Madina en toute une communauté qui pour tout pour vivre en paix, tout pour vivre avec fraternité, pour l'entente, pour l'harmonie en toute une communauté. Nabi Karim sallam fait drafter une condition là-dedans. Et alhamdulillah, thumma alhamdulillah, un islamologue comme un professeur Hamidullah
en France, les dianos ça traité qui t'y drafté en toute bonne communauté dans Madinatul Munawwara, sa même première constitution démocratique qui existe dans le monde. Sa même première constitution démocratique qui existe dans le monde. Ça traité que Nabi Karim sallam fait pour toute une communauté vivre ensemble. Et deuxième question, nous pourrions marquer qui s'en a qui pour garant ça traité là, qui s'en a qui pour surveiller ça traité là, qui s'en a qui peut violer ça traité là, qui s'en a qui peut violer ça traité là, qui s'en a peut respecter ça traité là, qui s'en a n'a pas peut respecter ça traité là. Toute communauté, ce sabi, ce juif, ce chrétien, fin d'accord, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peine plus honnête qu'il est, qui est capable de garantir sa traité qui peut faire là. Toute communauté, ça leur fait accepter que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est garant de la constitution traité Madinatul Munawwara. Pour consolider sa l'unité là, pour garder sa l'entente là, pour garder sa la paix, l'harmonie là. Coran fin cause beaucoup. Nabi Karim sallam fin cause beaucoup. Mais seulement, nous pas pour capable rentrer dans le détail. Par exemple, si nous lisons Surah Al-Hujurat, 46e chapitre du Coran. Surah Al-Hujurat. Où vous trouvez une clause qui nous mettait là-dedans. Qui nous besoin garder respect pour capable garder ça, l'unité là, pour garder ça, l'harmonie là. Là-dedans, nous prenons seulement deux clauses pour aujourd'hui. Un là-dedans, négatif avec un positif. Négatif là qui était, Allah tabaraka wa ta'ala dans Surah Hujurat dit pour l'unité, pour l'harmonie, pour la fraternité. Un parmi les choses qui nous besoin respecter, qui nous besoin pas faire. Les négatifs. Faudrait pas que quelqu'un prend lui pour plus supérieur, faudrait pas que quelqu'un prend lui pour plus grand. Supérieur par appartenance sur religion, sur race, ou bien sur langage, ou bien sur couleur. Personne n'a pas vu supérieur par rapport aux races, par rapport aux communautés, par rapport au langage ou bien par rapport aux couleurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit qui s'en a qui supérieur, Allah rabbul alamin dit inna akramakum indallahi attaqakum. Personne pas supérieur, pas sur couleur, pas sur richesse, pas sur bungalow, pas sur campement, pas sur bagnole, ou bien pas sur langage, ou bien pas sur pays. C'est quelqu'un supérieur devant Allah Rabbul Alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est bandimoun qui en a plus beaucoup piété dans eux, plus beaucoup taqwa, plus beaucoup paresgari, plus beaucoup la foyer Allah, plus beaucoup khawfelaï. Sabanla qui supérieur devant Allah. Inna akramakum indalatqakum. Et Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dernier khutbah, ce qui nous appelle khutbatul wada, dans ce dernier sermon, il fait précise ça bien, quand Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam la fazla arabi ala ajami, wala ajami ala arabi, wala akhmara ala aswada, wala aswada ala akhmara. Aucun arabe n'a pas plus supérieur qu'un noir arabe. Et aucun noir arabe n'a pas plus supérieur qu'un arabe. Aucun blanc n'a pas plus supérieur qu'un noir. Et aucun noir n'a pas plus supérieur qu'un blanc. Kullukum min Adam. Wa Adam min Turab. Je tous enfants Adam alayhi salam. Et Adam Allah fin créé avec la terre. Veut dire je tout avec la terre. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Alors quand quelqu'un commence à parler pour supérieur, quand quelqu'un commence à parler pour plus grand, la même qui commence à une friction dans la société, commence à une line dans la société, commence à une l'ennemité dans la société, commence à un problème dans la société. Il ne faut pas que quelqu'un parle pour plus grand.
Personne ne peut plus surveiller. Et qui s'en là qui n'a plus beaucoup piété dans lui, qui s'en là qui n'a plus beaucoup de taqwa, ça c'est Allah qui est capable de zizi. Zis Allah tabaraka wa ta'ala qui a le droit de faire zizement. Nous n'avons pas le droit de juger personne. Ça c'est un côté négatif. Nous sommes positifs. Un qui est positif, puis à pratiquer pour capable garder sa l'unité là, pour capable garder sa l'harmonie là. Dans Surah Hujurat, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Faire la justice. Faire la justice. La justice dans la société. Les là qui prennent la paix. Les là qui prennent l'harmonie. Si peine à la justice. Si pas faire la justice dans la société, crois-moi, au bon frère, dans nos propres cases, si nous pas juste envers nos bons enfants, si nous pas faire la justice envers nos bons enfants, dans nos propres cases, n'a pas point de tranquillité. Dans nos propres cases, n'a pas point de l'unité. Dans nos propres cases, point de problème. Dans nos propres cases, point de révolte. Dans nos propres cases, point de sentiment de rebelle. Parce qu'un enfant n'a pas payé la justice. Dans une société, tant que la peine à la justice, tant que toute communauté n'a pas senti intégré dans une société pareille, n'a pas point à la paix, bisé dans la justice, en toute communauté, il est là capable de la paix. Mon Dieu, dans nos sociétés, tant que peine à la justice, pas point à la paix. Il est difficile point à la paix, point à la frustration. Pour une frustration, pour une révolte, pour un sentiment de haine, parce qu'il n'a pas la justice. Et nous allons un petit peu plus devant. Tant qu'il n'a pas point à la justice, n'a pas point la paix dans le golfe. Tant qu'il n'a pas point à la justice, envers les peuples palestiniens, envers nos frères palestiniens. Tant qu'il n'a pas point à la justice, envers ce peuple palestinien, n'a pas point à la paix dans sa golfe là. N'oubliez qu'il point à la paix, tant qu'il point à la justice là-bas. Et en tant que musulman, et en tant qu'humain, on peut dire, en tant qu'insan, celui qui a un sentiment humain dans lui, celui qui a l'amour dans lui, celui qui a un sentiment et l'amour dans lui, si un petit peu d'un jour pareil, les pas pensent ça va faire palestinien là, les bizarres pas d'appeler un vrai musulman. On peut célébrer Eid Miladun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrivons près nous l'étant aussi terminé. Mais seulement, bon frère, ça 10-15 minutes de retard là. Ça 10-15 minutes de retard là. Get a halat ou bon enfants. Get a halat ou bon enfants. Les enfants commencent à crier. Les enfants peuvent faim. Les enfants peuvent soif. Les enfants peuvent chaîne. Maman pas capable de contrôler ses enfants. Papa pas capable de contrôler ses enfants. Imaginez, ça bon frère de Gaza là, bon frère de Gaza, de frère de Palestine, depuis 7 octobre, qui je peux vivre là-bas, peut manger la boue, peut manger l'herbe, peut biser bouillir la boue pour boire. Imaginez, est-ce qu'il y a un sentiment humain dans lui, s'il y a un sentiment insane dans lui, il est pour capable d'oublier, ça bon frère palestinien là. Mais c'est moi qui nous capable de faire, mon frère, ben c'est qu'il a apporte qui nous dit un petit peu de doigt pour eux. Nous lève la main que Allah tabaraka faire la hamle aux autres. Allah ouvre un chemin pour eux. Et Inch'Allah tabaraka ta'ala, par barakat yawmun nabi, ça pavillon qui vous fait lever là. Ça pavillon qui vous fait lever là, mon Dieu, dans mon Jumma aussi, il y a aussi mon Dieu dans le majlis. Comment nous, musulmans, nous célébrons yawmun nabi? Nous célébrons Yawmun Nabi dans la même pavillon. Dans nous l'équerre, taqwa, parhezgari, la prière Allah, sincérité, khulous, muhabbat, le labouche kena, zikrullah, le labouche tilawatul Coran, Daroud, Salam, Nat Sharif, et là nous préciser, nous pouvons écouter, c'est ça, célébration Eid Miladun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous pouvons lire ce pavillon là? Pas barkat saban pavillon là, saban enfants qui viennent lire ce pavillon là. Nous demandons, par sincérité saban enfants là,
Par sincérité, ça va nous enfants-là. Demain, nous trouvons notre pavillon Palestine, mais flotter le masjid Al-Aqsa. Inch'Allah, un jour nous pouvons trouver ce pavillon Palestine là, nous pouvons flotter le masjid Al-Aqsa. Et ça là pour faire nous tourner, par barakat ban célébration, Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala fait Kaboul, Allah Rabbul Alamin amène la paix, l'harmonie, l'entente entre toute communauté dans ce pays là. Et Allah Rabbul Alamin fait toute communauté gagne la justice. Chacun gagne ce port. Allah tabaraka wa ta'ala fait Kaboul wa ma alayna illa al-balag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, je finis écoute 3 messages poignants. Là, comme on a terminé, il vraiment tous nous. Et tous nous dans le cœur, et tous dans nous l'âme. Et qui nous a fait comme on a dit, nous jusqu'à dire doigt. Nous avons dit, c'est ban qui nous demande doigt pour autres, pour gagner Jannat. Et ban qui là, nous demande doigt pour autres gagner Sabbat. Alors on a 2-3 annonces avant qu'ils nous terminent. Première affaire, il y a des enfants. Il y a des enfants qui perdent ses parents. Ils peuvent pleurer, ils ont un first aid post pour derrière. Il y a un first aid pour derrière. Les enfants là, ils peuvent pleurer, ils peuvent retrouver sa famille, ils peuvent connaître qui sont famille, ces enfants par lui. Al côté sa first aid box là, first aid post là. Donc à tout garçon là-bas, il peut pleurer terrible. Alors il y a une coupe pour soulager. Deuxième annonce, il y a des motocyclettes qui bloquent nous l'entrée ici. En fait, ils sont outils que tout Michel pour passer pour sortir. Talent moment, il y a des motocyclettes, rendre service plus vite que possible. Thierry, 51 78 AJ, 51 78 AJ et 14 80 AJ. Vous répétez 51 78 AJ, 14 80 AJ. Alors on arrive à la fin du programme. Nous le reste un dernier item, c'est Salatou Salam avec doigt. Alors, avant qu'il m'ait terminé, j'ai envie de faire 2 annonces. Première annonce, c'est qu'il y a beaucoup de Michel par derrière. Il y a beaucoup de Michel par derrière. Nous demandons aux autres, rentrent dans la tente, parce qu'il y a l'air que pour sortir, nous savons manger 10 qui sont dans la tente. Surtout, il y a beaucoup de Michel côté madame. Nous faisons l'appel qu'ils rentrent ici, parce que côté madame pour servir 10 madame, côté Michel pour servir 10 Michel. Alors, je dis encore, quand c'est manger, parfois, quand nous passons un très bon Eid Milad al-Nabi, nous venons faire un très joli Julous, nous venons assister ici, tout le monde me croit, ce qui me comprend, c'est que tout le monde est satisfait, ce qui déroule ce qu'il Alors, nous disons, prenez un petit peu de patience encore, un petit moment, nous vous faisons salam, nous vous faisons doigt, et en sautant, nous vous partageons takeaway. Donc, Michel, note bien. Hein? Alors, on peut refaire un appel à Michel, rentre dans la tente. Nous vous servons Michel, 6 ban Michel qui sortent dans la tente, que nous vous servons manger. Donc, ban Michel pour sortir par devant ici, tout Michel pour sortir ici. Mon conseil, c'est qu'ils ne sont pas pressés pour sortir. Un parti reste à ces sortir doucement. Tout le monde nous fait provision pour tout le monde. Ils ont sorti doucement, pour ne pas aucun poussée, pour ne rien, nous sortir tranquille. Et madame, pour pas derrière. Nous avons volontaire pour venir. Et nous avons volontaire pour venir pour passer. Et pour servir aussi vite que possible. Deuxième affaire, j'ai envie de remercier tout le monde qui participe pour organiser ce programme-là. Alors, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité d'un MPI pour l'attente. Nous avons la municipalité pour lui. Nous avons la police surtout. Il y a un BCTV qui peut couvrir, il y a encore le département de la santé, et CWA, l'environnement, etc. Tout le monde, l'autorité qui aide nous remercions beaucoup. Nous remercions aussi toute la société qui nous donne nous coup de main, tout le monde qui participe financièrement, tout le monde volontaire qui nous donne coup de main, et nous avons raté qui l'a aujourd'hui. Aussi, je remercie toute votre présence. Allah donne nous jaza et khair, dans dunya dans akhirat, et qui ça. Milad al-Nabila vient pour nous un moyen pour Allah excuse-nous un jour quand nous intégral. Dernière affaire qui m'a dit, dernier même, c'est que vous connaissez, mon Haroun,
ce discours, une femme comme dit un peu coupe-moi les souffles. Mais seulement, laisse-nous la tête dans nos épaules. Alors, nous pouvons pour nous salam là. Moi, tu fais un appel que tout le monde, quand nous discutons pour faire salam, avant de faire salam, tout le monde, il y a une fois dans le Sharif, il y a 3 fois, une fois sur la Alham, sur la Fatiha, 3 fois sur la Ikhlas, encore une fois dans le Sharif, pour faire ça les sawab, pour tous nos frères, parce que quand tu es dans le monde, quand les musulmans peuvent souffrir, nous demandons droit pour eux autres, nous faisons ça les sawab pour eux autres. Alors, nous demandons tout, Djibouti, dans notre l'équerre, il y a une fois Daroud Sharif, une fois Alham, 3 fois Kul Huwallah, après nous faisons salam. صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. Une dernière annonce qui mon Haroun il fait ma signe, moi tu besoin faire annonce là, mais si tant que moi dis autres l'émotion parfois fait oublier ou même. Et c'est qu'il m'a fait une annonce inchallah le 6 octobre nous faire maman petit dit moi tu dis l'année dernière ça nous faire Eid Miladoun Nabi le 6 octobre, dimanche le 6, réserve de dimanche le 6, la route militaire de la plaine, comme on a habitué faire tous les années. Et mon petit dit, ça déprogramme là, les commandants des chapitres un même livre ça. Ça veut dire nous pour là-bas aussi, ici aujourd'hui nous pour là-bas les 6. Alors maintenant on vous demande Kari Mohsin pour lire ça tout ça. मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस सुहानी चमका तैबा का चाँद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम दूर नज़दीक के शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों अपने मौला के पे करो रोदो रोद उनके अस्हाब इतरात पे लाखों सलाम का
शौकत ला मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सदक़े आले रसूल ये सलामे आज الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. या अल्लाह रब्बुल आलमीन या इलाहुल आलमीन हमारी इस महफिल को कबूल फरमा ले, पढ़ने को सुनने को हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। जिन लोगों ने इस महफिल के सजाने में हिस्सा लिया है अल्लाह उनकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। हमारे उन नौजवानों को हिम्मत अता फरमा। सुन्नी रज़वी सोसाइटी के तमाम मुआविनीन मुखलिसीन जिन्होंने इस इजलास के मुनक़िद करने में दामे दिरमे कदम सुखन हिस्सा लिया है अल्लाह उनको दानिन की नेमतें अता फरमा। या अल्लाह हमारे इन तमाम प्रोग्रामों को सुन्नी रज़वी सोसाइटी को रोज़ अफजू तरक्कियाँ अता फरमा। ए मेरे मौला परवरदिगार हमें ईमान पर कायम रख, इस्लाम पर कायम रख। या अल्लाह हमें गुमराहों से बचा, गुमराहियों से बचा। या अल्लाह हमें अपना सच्चा अच्छा बंदा बना दे, अपने महबूब का उम्मती अच्छा उम्मती बना दे। इस्लाम पर कारबंद फरमा, सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमा। या अल्लाह मेरे मौला हमें ऐसा नमूना बना दे कि जिधर जाएं देखने वाले देख कर कहें ग़ुलाम मुस्तफ़ा आ रहा है। या अल्लाह मेरे मौला तमाम बुराइयां जो हमारे अंदर हो मिटा दे, ख़त्म कर दे। या अल्लाह तमाम ही कमियों को दूर कर दे। या अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना बना दे। ये मेरे मौला जो भी परेशान हाल उनके परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज़दार हैं उन्हें बार कर्ज़ दोषी अता फरमा। अल्लाह जो बीमार उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ए मेरे मौला परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दे दे। जिनके रोज़गार चल रहे हैं उनके रोज़गार में बरकतें अता फरमाएँ। अल्लाह जो बे औलाद हैं जिनकी गोदे खाली हैं उनको औलाद अता फरमा। और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक सालेह बना दे। हमारी बहन बेटियों में शर्म हया अता फरमा, कनीज़ फ़ातिमा बना दे। या अल्लाह मग़रबी तहज़ीब से महफूज फरमा दे। या अल्लाह इस्लामी कल्चर अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे मौला हमारे तमाम मरहूमीन के बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह सुन्नी रज़वी सोसाइटी के जितने भी मुंतज़मीन अरकान मुआविनीन मुखलिसीन का ख़ास कर हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अय्यूब रज़वी रहमतुल्लाह ताला अल्लाह मालिक मौला जन्नत में आला दर्जे अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे मौला हमको मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात और मसलक इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला पे कायम व दाइम रख। अल्लाह हमको हमारी नस्लों को गुमराह जमातों से बचा। हम सब में इत्तिहाद अता फरमा, मोहब्बतें अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन व आश्ती फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क में नफ़रतें ना आने पाएँ, आपस में मोहब्बतें अता फरमा दे। हमारे मुल्कों को तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह जो मांगा है वो भी दे, और जो नहीं मांग सके हमारे दिल में जो भी हाजत है, जो भी तमन्ना है, जो भी आरजू है पूरी फरमा दे।
अपने मकबूल बंदों की मकबूल दुआओं के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बफज़लिही सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।